خیال ہے کہ ہمیں واسے کی ماں کو فون کر کے گھر آنے کی دعوت دینی چاہیے. اماں پلیز منہ ٹھیک کر لیں یار. عالیہ بہت سمجھدار ہے, وہ جوش میں خشک ہونے والی لڑکی نہیں ہے. آپ کو اپنے بچوں کی لمبی زبانوں کا نہیں پتا ہے؟ خاص طور پہ اکرم آپ کے بیٹے کے سابقہ معاشقوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کر دے گا. بالکل آپ کی امی اور آپ کی بہن پہ گئی ہیں اس کی عادتیں. واسم یہ کیا ہے؟ تمہاری کسی سے لڑائی ہوئی تھی؟ آپ ایک کام کریں, آپ کل رات ممی کو ڈنر پہ لے کے چلے جائیں, ان کا موڈ بہت اچھا ہو جائے گا. بٹ ان لوگوں کا کیا جن کے گھر ہم رشتہ لے کر گئے تھے اور یہ سارا فساد ہو گیا وہاں پہ. ابھی آپ کو اپنے گھر اور اپنے پیرنٹس کی فکر کرنی چاہیے. وہاں پہ بھی سب سیٹ ہو جائے گا, ان کو آپ سے بہتر داماد نہیں ملے گا. تم کیا بابا کو سمجھتی نہیں ہو؟ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر کون تھا. وہ کہیں گے کہ اتنا غصہ, انہیں صرف غصے والے رویے سے ہی مسئلہ ہوگا. فراز صاحب کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں پتا, انہوں نے تو ریزائن کر دیا. کیا کرنا چاہیے, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اتنی بھی کیا بےتابی ہے, ہواؤں کا رخ تو بدلنے دے پہلے. کیا کروں, کسی سے پیار جو اتنا ہو گیا مزید انتظار ہی نہیں ہوتا. بھائی کبھی شوہر کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو. لے بیٹھ گئے. اب آپ کو اپنے فون سے فرصت نہیں ہے. میں نے نوٹ کیا جب سے میں فون لیا ہے بات سے تمہیں کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی. فکر نہیں کرو, تھوڑے اور پیسے آنے دو, تمہیں بھی نیا فون لے دوں گا. کوئی ضرورت نہیں فضول پیسے خرچ کرنے کی. ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی. ویسے کوئی خیر خبر آئی تمہارے گھر سے؟ تمہارے اما ابا کا چہرہ ہی نہیں بھول پا رہا ہوں میں. جب انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی کیسے طوطے اڑ گئے تھے ان کے. وہی میں سوچ رہا تھا کہ اتنے امیر لوگ, بڑی بڑی گاڑیاں, یہ اچھا لڑکا, تم لوگوں کے گھر اس طرح کے کیسے آ گیا. بعد میں پھر وہ ویڈیو دیکھی تو پتہ چلی گیا نفسیاتی ہوتے ہیں ایسے لڑکے. شادی کے بعد بیوی کو مارتے پیٹتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میری بہنیں پڑھی لکھی ہیں, قابل ہیں, وہ ایسے خاندان ڈیزرو کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کسی انسان سے ملنے جلنے سے ہی پتہ چلتا ہے اس کی خصلت کیا ہے, ورنہ بعد میں تو بہت سی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں. کتنی ناشکری ہو تم. میں جیسا بھی ہوں بہتوں سے بہتر ہوں. کم از کم یہ واسے کی طرح سڑک پہ لوگوں کو مارتا پیٹتا تو نہیں پھر رہا نا. کتنا اترا رہے تھے تمہارے بابا اس رشتے کو لے کے, ہر وقت واسے واسے کی رٹ لگائی ہوتی تھی. یہ آپ نے ہی آپ کا کمپلیکس بول رہا ہے, ورنہ میرے گھر والے آپ کو کتنی عزت دیتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. ہاں تو کرنی بھی چاہیے. داماد ہوں اس گھر کا, بلکہ بڑا داماد ہوں. چاہ کے بھی میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا. مما میں تھوڑی دیر آپ کا موبائل یوز کر لوں؟ ارے بیٹا, ماما کا موبائل کیوں, بابا کا نیا فون یوز کر لو. میری بیٹی اگر اس دن موبائل پہ وہ ویڈیو نہ نکالتی تو ہمیں کیسے پتا چلتا. جا آپ کھیلو. کیا ہوا ہے, منہ بنا کے کیوں بیٹھی ہوں؟ چائے پلا دو, اس کے بعد مجھے جانا ہے ایک جگہ پہ. سب کے سب واسے کے رشتے پہ اترا رہے تھے نا, اب پتہ چلے گا. دل خوش ہو گیا.
का बीपी लो रहता है, अम्मा का बीपी हाई रहता है। आपकी शुगर हाई हो जाती है और अम्मा की शुगर लो हो जाती है। मुझे ये बताएं, आप दोनों अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? बैठ जाओ। अगर अपना ख्याल खुद रखना होता तो तुम्हें क्यों डॉक्टर बनाता? डॉक्टर साहब, अभी आप दवाई देंगी, हम खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। हर बात मजाक में उड़ा देने वाली नहीं होती है। दवा खा के तबीयत को वक्ती तौर पे बेहतर करने से अच्छा है कि बीमारी को जड़ से ही निकाल दिया जाए। हाँ, पता नहीं बीमारी की वजह भी ये है या नहीं, लेकिन एक बात है, दिल नहीं मान रहा। आप ही तो हमेशा कहते हैं ना कि दिल की सुननी चाहिए। काश के दिल का भी कोई दिमाग होता ताकि फैसला करने में आसानी हो जाती। वैसे ना वासे भाई इतने भी बुरे आदमी नहीं है। आप एक बार उनसे मिलकर तो देखें। और आपको एक बात बतानी थी। बोलो। वो वीडियो आपने देखी थी ना, उस वीडियो के पीछे वजह आलिया है। ये क्या कह रही हो तुम? मगर वीडियो में तो आलिया नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उस वीडियो में आलिया नहीं थी। और ये वासे भाई का बड़ापन है कि उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। आखिर हुआ क्या था, खुल के बताओ, क्यों पहले बुझवा रही हो? वो वासे भाई और आलिया एक साथ थे। किसी ने आलिया को तंग किया और फिर वासे भाई को गुस्सा आ गया। बाकी की कहानी तो आपके सामने। तो तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं ना कि आपसे कोई बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। और बाबा, गुस्सा ना हमेशा किसी बात का रिएक्शन होता है। और वासे भाई ने किसी को इतना मारा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो हुई होगी ना। और वो वजह पता है कौन है? आपकी ही अपनी लाडली बेटी आलिया। जरा सोचें, वो आलिया से कितना प्यार करते हैं कि उनकी खातिर किसी से लड़ झगड़ गए। आपको पता है, आलिया इतनी खुश थी, वो मुझे पता है क्या कह रही थी? कहती है, पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि बाबा के अलावा कोई मर्द है जिसके साथ मैं खुद को इतना सेफ फील करती हूँ। चलो, वासे का बहुत शुक्रिया कि उसने मेरी बेटी का ख्याल रखा। मैं आपको बता रही हूँ, वासे भाई से ज्यादा ना आलिया का कोई ख्याल नहीं रख सकता। मेरी माने तो एक बार ना आप अम्मा को भी समझाएं। वो एक बार वासे भाई से मिलें तो जो वहम है, जो खदशात है, सारे क्लियर करें। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो आपके सारे पैसे वापस। मैं एक बात सोच रहा हूँ, खाम मेडिकल कॉलेज में इतनी फीस जा रही है, तुम्हें तो साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था। कह तो सही रहे, लेकिन बाबा, जो बात दिल से निकलती है ना, वो सीधा दिल में उतरना जरूरी है। और दिल में उतरने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल की बात को समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच फराज, इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। दरअसल तुम्हें पता है ना कि सारे प्रॉपर्टी के काम मैं और फरिया दोनों मिलकर देखते हैं, लेकिन लॉयर ने इतना परेशान किया कि मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। फरिया को आने में कुछ दिन बाकी थे, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब किया। आई एम सो सॉरी। अरे आंटी, इसमें डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं है। कम से कम इस बहाने हमारी मुलाकात तो हुई। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और कुछ अरसे के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम तो शायद किसी लड़की को पसंद करते थे। इनफैक्ट तुम तो उसे प्रपोज करने वाले थे, फिर क्या हुआ यूं अचानक? बस जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, और जैसा होता है वैसे कभी सोचते ही नहीं। इस बात पर तुम्हारे अंकल मुझे एक शेर सुनाया करते थे, यहाँ किसी को भी हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम ना मिले, कोई हमें ना मिला। शायद कुछ ऐसा ही था। शेर आपने थोड़ा गलत पढ़ा, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है।
इफ यू डोंट माइंड तुम मुझे उस लड़की की कोई पिक्चर दिखा सकते हो? असल में मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और रिजेक्ट कर दिया। दिखाता हूँ। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बिला झिझक मुझसे कहना। थैंक यू आंटी, आपका बड़ा मन है। अगर कोई भी जरूरत हुई तो बिला झिझक आपको बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तुम बैठो, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी भी लड़की के लिए आइडियल हो सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। हम इंसानों की सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते। पीठ पीछे चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे हमारे बारे में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। अगर वो वीडियो वायरल ना होती और आप लोगों ने ना देखी होती तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन अब तो वीडियो देख ली है और उसका सबब भी हमें पता लग गया है, तो तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे खदशात दूर हो गए। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि आप लोगों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? बेटा, रिश्ते पर तो हमें कभी भी एतराज नहीं था। एतराज सिर्फ गुस्से पर है। और गुस्सा इंसान को देखो खा जाता है। मुझे इतने गुस्से से बहुत डर लगता है। मैं कितना ही कहूं कि मैंने अपनी बच्चियों को बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन आखिरकार वो लड़कियां हैं और हम नहीं चाहते कि उनका हमसफर मारने पीटने और गुस्सा करने वाला हो, क्योंकि ऐसे लोग घर में भी कुछ ऐसा ही रवैया रखते हैं। देखिए अंकल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी पर चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, उस पर हाथ उठाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही तो मेरी तरबियत ऐसी हुई है और ना ही मेरे घर का माहौल ऐसा है आंटी। इनफैक्ट मेरे घर वाले इस वायरल वीडियो की वजह से बहुत परेशान हैं और आलिया की इज्जत मेरी इज्जत है। जिस लम्हे उन लड़कों ने आलिया से बदतमीजी की थी, उसी लम्हे मुझे एहसास हो गया था कि उसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। देखिए अंकल आंटी, जो कुछ भी मैंने किया है, कोई भी गैरतमंद आदमी होता तो वो भी यही करता। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस दिन मैंने एक कदम ना उठाया होता तो शायद मुझे लगता कि मैं गैरतमंद इंसान नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे दिल में जितने भी खदशात थे, आज तुमसे मुलाकात करके सारे खदशात दूर हो गए। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं भी जरा नमाज पढ़ के आता हूँ, तुम लोग बैठो। आइंदा आपने ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़ा करें लेकिन आसपास देख भी लीजिएगा कि कहीं कोई कैमरा ना लगाओ। तुम कहो तो पर्दा करना शुरू कर देता हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वैसे मैटर्स हम शादी के बाद डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुम्हें पता है मम्मी यहाँ से हाँ सुनने के लिए इतनी बेताब बैठी है। अगर आप कहें तो मैं अभी फोन करके हाँ कर दूं? वो खुशी से बेहोश हो जाएंगी। बस हालिया एक चीज का ख्याल रखना, मम्मी को ये ना पता चल जाए कि ये शादी पसंद की है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज। वो इतने इनसिक्योर क्यों हैं?
और पसंद की शादी में हर्ज ही क्या है? अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं, फिर कभी बताऊंगा तफसील से। अभी तुम मुझे इस खुशी को महसूस करने दो कि तुम्हारे पेरेंट्स मान गए। हाँ, ये बात तो है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। तुम्हें पता है, मैं इतने दिनों से इतना परेशान हो गया था आलिया। अच्छा हाँ, तो छोड़िए, बाबा ने देख लिया तो, और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं क्या कह रहा था, तुम्हें पता है मेरे मोहल्ले की आंटियां, ऑफिस के कोलीग्स वगैरह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। खानदान वाले जिन्होंने कभी कॉल नहीं किए वो भी कॉल कर करके पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने नोट किया है कि हम खुशी के मौके पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन गम के मौके पर हम इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि दूसरों की खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है और गम की वजह जाने बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। चलें अंकल, इजाजत दें, अगली मर्तबा अपने वालिदैन के साथ आऊंगा तारीख तय करने। हमें इंतजार रहेगा, अपना ख्याल रखना। आप भी। गाड़ी तो बड़ी शानदार है, बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहा है बेटा। देखना, लग पता जाएगा। बात दरअसल ये है, ये सब आज बात हुई है मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू सो मच बाबा। मेरा बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, आप एक बार वासे से मिलेंगे तो आपकी राय बदल जाएगी। यार वो पसंद मुझे शुरू से था, ठीक है, लेकिन बस उस वाक़े की वजह से एक दिल में एक फांस सी चुनी हुई थी जो अब निकल गई। थैंक यू सो मच बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा। बाबा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 से भी ज्यादा। मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सब क्या चल रहा है? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ये देख के तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे। बात ही कुछ ऐसी है। अब तुम अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारियां शुरू करो बस। सच्ची? मुझे पता था, मुझे पता था। वासे भाई बाबा को जरूर पसंद आएंगे। चलो अब निकालो मेरी मैच मेकिंग फीस, पूरे $500 लूंगी। चलो 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 चलो। अरे अरे भाई, ये रिश्ते वाली खातून कब से बन गई तुम, और इतनी महंगी? क्या हो गया इसे? इसकी हरकतें सारी वैसी की वैसी हैं और जबान भी वैसे ही चलती है, बल्कि उससे भी ज्यादा लंबी है। कलाशिनकोव की तरह चलती है हर वक्त। क्या इस घर में कोई काम मेरी बेइज्जती किए बगैर नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। अरे पगली, हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं करते, ये तो हम सबका तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारी जान हो। बिल्कुल। पर अब तुम ये सब प्यार अपने ससुराल में जाके दिखाना। वैसे भी ना मुझे तुम्हारी सास बच्चे अगवा करने वाली औरत लगती। अरे लड़की, ज़बान संभाल के। कैसी बातें करती है लड़की तू। ये ऑल फॉल उनके सामने मत बक देना, खुदा का वास्ता, लेने के देने पड़ जाएंगे। माय गॉड, मजाक कर रही हूँ। मजाक की बच्ची, हटो। क्या? किचन में जाना, मुझे जरूरी काम है मेरे। अम्मा भी ना।
अच्छा मैं भी जरा इसकी हेल्प करा दूं वरना मूड खराब हो जाएगा बेगम का। हाँ प्लीज भाग कर जाएं। इसको तो पीछे क्या। अच्छा मैं भी चलती हूँ, मुझे ना एक जरूरी फोन कॉल करनी है। मुझे सब मालूम है ये कौन सा जरूरी फोन कॉल है। अब तो मानती हो ना, जो कहा था वो करके दिखाया है। हाँ मैं मान गई और मैं बहुत खुश भी हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी डिस्टर्ब थी। अच्छा, और मैं जो तुम्हारे चक्करों में वायरल हो गया हूँ उसका क्या? अच्छा बस भी करो। अब ये रिवायती शौहरों की तरह हर बात का इल्जाम बीवी पे डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी कि तुमने मुझे अपना शौहर तस्लीम कर लिया है फाइनली। आपको बातें बनानी खूब आती हैं। और मुझे ये बताएं, ये ड्राइव करते हुए कॉल पर बात क्यों हो रही है? आप घर जाएं आराम से तसल्ली से, फिर मुझसे कॉल पर बात करें, मैं आपका वेट करूंगी। मैडम मैं एक एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ और इस वक्त बगैर हाथ के ड्राइव कर रहा हूँ। वासिफ प्लीज, वासिफ आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे वरना मुझे कुछ हो जाएगा। अरे मजाक कर लो, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? चलो मैं घर जाके तुमसे बात करता हूँ। ओके बाय। बाय। मैं आपको बाद में कॉल करती। आप तो देर से आने का कह कर गए थे, जल्दी आ गए। खैरियत? इतना बुरा लग रहा है तो वापस चला जाता हूँ। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया जो आपको इतना बुरा लग गया। एक बात बताओ, ये आलिया उस लड़के को पहले से जानती थी? कौन सा लड़का? वासे, वही जिसकी वीडियो इंटरनेट पे आ गई थी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई फारसी नहीं बोली मैंने जो इतना परेशान हो रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था तो देखा कि वो लड़का अकेला तुम्हारे घर आया हुआ है। तुम्हारे अब्बा बड़े लहक लहक के खुशी से उसे खुदाफिज कह रहे हैं। हमें एक तरफ कहते हैं कि उनसे रिश्ता नहीं करना है, दूसरी तरफ उसे घर बुला के दावतें हो रही। क्या माजरा है भाई? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप वहीं थे तो मिल भी लेते। यकीन है मुझे तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, चाहे जितना भी छुपा लो। ये तो मुझे पता चल गया है कि आलिया उस लड़के को पहले से ना सिर्फ जानती थी बल्कि पसंद भी करती थी। और मुझे यकीन है कि ये सारी बातें ना पहले से तय हैं। अगर ऐसा कुछ है भी तो बुराई क्या है? मुझे यकीन है वासिफ यकीनन बहुत अच्छा लड़का है, तभी तो आलिया ने पसंद किया उसे। वैसे आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे क्यों फिक्र होगी भाई? उस घर का बड़ा दामाद हूं मैं, ठीक है? लोग अपने दामादों से पूछे बगैर घरों में कोई काम नहीं करते, कोई फैसले नहीं करते। तुम्हारे खानदान का ना दस्तूर ही अलग है, सिवाय बड़े दामाद के हर किसी को इज्जत देते। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, आलिया के लिए जब भी कोई अच्छा रिश्ता आया बाबा ने हमें बुलाया है, हमारी राय जानी है। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि आलिया का उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अम्मा, ये चक्कर चलना क्या होता है? तुम ना चुप रहो, हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। अम्मा को कॉल करके पूछती हूँ कि आखिर वहां चल क्या रहा है। पता है
ऑफिस में बहुत दिनों से तुम्हारे लिए बातें हो रही हैं, और एक वो फ्रिया है, वो तुम्हारी वीडियो सबको फॉरवर्ड करती फिर रही है, सब कलीग्स को भेज चुकी है और सबको मैसेज भी कर रही है कि आखिर ये सब क्या माजरा है। यानी कि वो अभी तक मेरी खबर रखती है। वासे मैं पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है, क्या माजरा है, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों? तुम्हें फरिया को अपडेट देनी है या फिर उसने भेजा है तुम्हें? कमान यार, हम इतने पुराने दोस्त हैं, कलीग्स हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, प्लीज यू शुड एटलीस्ट ट्रस्ट मी। तो फिर इस बात का भी यकीन कर लो कि ये सब कुछ एक फ्रेब था, नजरों का धोखा था। तो तुम सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मैंने उन लड़कों को मारा है। किसी ने मुझसे ये सवाल तो नहीं पूछा कि क्यों मारा है, वजह क्या हुई थी? मैं पूछ रहा हूँ ना यार, देखो तुम ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट पर हो, लोग तुम्हारे सामने बात करते हुए घबराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो लोग प्राइम मिनिस्टर की भी बुराइयां करते हैं। मैं एचआर की तरफ से नहीं, ये दोस्त बनकर आया हूँ। एनीवेज, हमारा खड़ूस बॉस तो तुमसे एक्सप्लेनेशन कॉल की डिमांड कर रहा है। प्लीज यार, मुझे किसी को कोई वजाहत नहीं देनी। उन लड़कों ने उस लड़की से बदतमीजी की थी, मुझे गुस्सा आ गया और फिर सब कुछ तुम्हारे सामने है। खैर कोई बात नहीं, वायरल हो गए हो। सुना है जब लोग वायरल हो जाते हैं तो मशहूर हो जाते हैं, फिर तुम्हें एक दिन कोई मॉर्निंग शो वाला बुला लेगा और फिर मॉर्निंग शो में तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। अरे वहाँ से कितना मज़ा आएगा, मैं तो बहुत एंजॉय करूँगा। मतलब दोस्त भी कहते हो और मजाक भी उड़ाते हो। दोस्त तुम, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ। एचआर की फिक्र नहीं करो, उससे मैं संभाल लूँगा। बस तुम कोशिश करना कि इस बारे में तुम खुद किसी से कोई बात नहीं करना। बाकी लेट्स सी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कहना क्या चाह रहे हो? मतलब तुम मुझसे खुलकर बात करो, आखिर बात क्या है? हाँ प्लीज टेल मी। वो दरअसल फ्रिया की कुछ फीमेल कलीग से मुझे पता चला है कि फ्रिया ने उनसे बोला है कि उससे ब्रेकअप के बाद तुम मेंटली अनस्टेबल हो चुके हो, इसलिए इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो। बट मैं तो जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान में क्या था और क्या हुआ। तुम्हें ये बातें किसी और से पता चलती हैं, इसलिए ये सब बातें तुम्हें मैं बता रहा हूँ। डोंट टेक इट सीरियसली, माइंड मत करना। शुड अंडरस्टैंड, जस्ट इग्नोर हर। चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। एक नया कॉफ़ी शॉप खुला है। लेट्स गो यार, really need a break. फ्रिया की कुछ फीमेल कलीग से मुझे पता चला है कि फ्रिया ने उनसे बोला है कि उससे ब्रेकअप के बाद तुम मेंटली अनस्टेबल हो चुके हो, इसलिए इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो। मुझे ना इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा, वरना ऐसी लोगों में बकवास करती रहेगी मेरे बारे में। अरसलान, आप किधर रह गए हैं? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। हमने डिनर पे भी जाना था। ओके, बट आई एम गोना वेट फॉर जस्ट 10 minutes. Sure. क्या तुम मेरे बारे में बकवास बातें फैला रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ए लिसन, मैंने तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल नहीं की है। इन लोगों के साथ ना मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दो, अंडरस्टैंड? मैंने तुम्हारा नंबर आज ही अनब्लॉक किया था। मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगे। तुम मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकते। फरिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों कर रही हो इस तरह? हाँ, शादी हो चुकी है ना तुम्हारी?
मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो फिर क्यों ऑफिस में लोगों के साथ मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में गॉसिप्स कर रही हो तुम? हाँ, शेम ऑन यू। तो ऐसा भी मैंने क्या गलत कह दिया? क्या तुम अभी भी मुझे याद नहीं करते? अभी भी जब तुम अकेले होते हो तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कह दो ये सब कुछ झूठ है, गलत है। ठीक है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन उस तरह तुम्हें लड़ता देख मुझे अच्छा नहीं लगा। It's not you, आसे। ये सच है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम नहीं मुझे छोड़ पाए। अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल के किसी कोने में आज भी मैं मौजूद हूँ। And you cannot deny this. के यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है। अरे सबिका, ये फ्लोर पे इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ हैं? सर फराज आए हैं, सब उनसे मिलने गए। क्या हुआ? तुम क्यों खामोश हो गए? तुम नहीं जा रही? आलिया, इस ऑफिस में सबसे ज्यादा तुमने उनके साथ काम किया। एटलीस्ट वो इतना तो डिजर्व करते हैं कि तुम उनको जाकर गुड बाय कह दो। अब मैं एक्चुअली बहुत बिजी हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी ईमेल करनी है। तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? और प्लीज अब ये मत कहना कि कुछ भी नहीं है। तुम उनका नाम भी सुनकर आंखें चुरा रही हो। प्लीज बता दो क्या हुआ। सबिका, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर तुमने मजीद कुछ जानना है तो जाकर तुम डायरेक्ट उनसे पूछ लो। इतना तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पसंद करते। मैंने उनकी आंखों में हमेशा तुम्हारे लिए वही रिस्पेक्ट देखी है जो एक मर्द की आंखों में अपनी पसंदीदा औरत के लिए हो। सबिका प्लीज, वो गॉड से चुप कर जाओ। तुमने उनकी आंखों में पसंदीदगी देख ली, लेकिन जो 3 सालों से तुम्हारे बराबर में बैठ रही है, तुमने उसकी आंखों में कोई जज्बा देखा है उनके लिए? ठीक है, उनके दिल में होगा मेरे लिए, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। किसी और को पसंद करती हो? हाँ, और आज मेरा रिश्ता तय होने वाला है, और प्लीज हम आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। क्या मुसीबत है, आज मासी को भी नहीं आना था, मेरे गले पड़ गया सारा काम। अरे भाई, कितनी देर लगाओगी? अभी तक यहीं खड़ी हो। ब्लाउज भी साफ कर रहे हैं, और ये पेंटिंग पे ना अच्छे से कपड़ा मारना, डस्ट नजर नहीं आनी चाहिए। अम्मा सीरियसली, अब क्या मेहमान पेंटिंग के पीछे से भी झांके देखेंगे? जितनी तेज जबान चला रही हो ना, इतना तेज हाथ चला लो तो कितना अच्छा। मैं कुछ भी कर लूं अम्मा, आपको तो मैं गलत ही लगूंगी। मैं मर भी गई ना तो आप बोलेंगी सही से नहीं मरी थी। बहुत जबान चलती है। अरे भाई, जब घर में फुल टाइम हाउस हेल्प मौजूद है तो मेरी बेटी को क्यों हलकन कर रही हो? हसीना कहाँ है? उसे बुलाओ, उससे काम करवाओ। आप तो इस मामले में बिल्कुल ही ना बोले। आपने ही इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मेरी बेटियां काम करने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए पैदा हुई हैं। क्यों? तो काम करवाने के लिए पहले काम का आना भी जरूरी होता है। खुद काम करेगी तो किसी से करवाएगी ना। आलिया और जोया भी तो सारे काम करती हैं। ये तो तबीयत से निकम्मी है। बाबा, आप देख रहे हैं अम्मी को? आपको पता है सुबह मेरी वॉट्स थी, अम्मी ने मेरी छुट्टी भी करवाई है, सुबह से मुझसे काम भी करवा रही हैं और बातें भी सुनाई जा रही हैं। भाई ये बहुत गलत बात है। काम करके बातें सुनने से बेहतर है इंसान काम ना करके बातें सुन ले। आप तो ना एक काम कर लें, इसके साथ जहेज में भेजने के लिए मुलाजिम की तैयारी कर लें। जितना आपने इसे सर पे चढ़ाया हुआ ना, ये मैडम खुद से तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इन टेंशनों से तो देख लीजिएगा, एक दिन मैं मर ही जाऊंगी। ये कुछ जलने की बू आ रही है। हाँ,
आ तो रही है। या अल्लाह, मेरे कबाबों का मसाला जल गया। ये आप दोनों की वजह से हुआ है सब। चलो आजा। उफ तौबा, आलिया के रिश्ते वाले ना हो गए, स्कूल का इंस्पेक्शन हो गया, हर जगह से सफाइयां कर। अरे भाई ऊपर ऊपर से कर दो बस। तुम तो अपनी माँ की तबीयत को जानती हो। वही तो कर रही हूँ, और जिसका रिश्ता देखने आ रहे हैं वो तो अभी तक ऑफिस में। अरे तो तुम भी कॉलेज चली जाती। तुम अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, उसे तो शोर मचाने की आदत है। हाँ, अब ना मैं भी यही करूंगी। मुझे सब आवाजें आ रही हैं, आकर मैं लेती हूँ खबर। जाके दूसरा कोई डस्टर ले आओ, हम दोनों मिलकर कुछ काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। मैं भी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। क्या आपने मेरी वजह से रिजाइन दिया है? नहीं, मैंने अपनी वजह से रिजाइन दिया है। आपको अपने काम से इतना प्यार है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और बात इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से जॉब छोड़ दी जाए। बात तो शायद अब कुछ रही भी नहीं। और शायद कभी कुछ थी भी नहीं। मुझे गिल्ट रहेगा कि गिल्ट रखने की जरूरत नहीं। हम एडल्ट्स हैं, अपनी नापसंद और पसंद का फैसला खुद कर सकते हैं। Wish you good luck. Same to you. By the way, congratulations. हमारी एंगेजमेंट की मुबारकबाद दे रहा हूँ। Thank you. बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो